Hello everyone, and we have read our poem, and after reading this poem there are some difficult word in this poem. So glossary, you have seen the four difficult word: accustomed to sing, famine, lay nothing by, and quiet. There are the mean also in this words, so you can note down these words from the textbook. And other difficult word of this poem. So before doing exercise, we will discuss some difficult word and note down. Okay, students. First word, story. Story means tale. Next, fable. Fable means a story acted by animals. Third one, conveys. Conveys means to deliver. Fourth, a moral. A moral means a lesson. Fifth, silly. Silly means foolish. Sixth, accustomed. Accustomed, used to. Seventh, cupboard. Cupboard, one thing like almirah. Crumb, small pieces of something. Next, starvation, a situation when people are suffering from food or scarcity of food. Next, trembling means shivering. Trembling means shivering. Miserly. Miserly means one who never spend their things to others. Next, sorrow. Sorrow means होता है one type state of mind when we feel sad or unhappy. Next, classmate. Classmate means one who study in same class. Next, hastily. Hastily means होता है urgently. Next, warrant. Warrant means to prove. Okay, these are the difficult word in this chapter, so you can pause the video and note down them. Okay, students, and now we are working with the poem. So their first question in this poem. Yes, the cricket says, oh, what will become of me? When does he say it and why? The question, the cricket say, cricket कहता है, oh, what will become of me? अब मेरा क्या होगा? When does he say it? उसने ये कब कहा? And why? और क्यों? तो इसमें बच्चों दो क्वेश्चन है. उसने कब कहा और क्यों कहा. सो हम वन वन क्वेश्चन का आंसर देंगे. आंसर है, when he found nothing in his cupboard and his home. When he found nothing in his cupboard at his home, so the cricket says, oh, what will become of me? अब सेकेंड क्वेश्चन इसी का है, जो उसमें है, he said it because there is not a crumb to be found, the ground is covered with the snow, no flower, no leaf could he see, and the winter was come. Full stop. First answer is completed. And the second question, find the poem, the lines that means the same as neither a borrower nor a lender be, written by Shakespeare. So ये जो लाइन आई है इसमें, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, इसका आंसर बच्चों हमारे जो आपका आंसर है, ये देखिए यहीं पे जो आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फोर्थ लाइन में देखिए, वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, वी आंट्स नेवर बोरो
वी आंट्स नेवर लर्न। ये जो लाइन है यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम नोट करेंगे। इन द लाइन वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लर्न, दैट मीन्स द सेम एज neither a borrower nor a learner be. Okay, second answer complete. Third question, second question, what is your opinion of the Arndt's principle? आपके आर्ट प्रिंसिपल के बारे में क्या विचार है? आपको अपने अनुसार लिखना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, लेकिन मैंने भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको खुद से करके देखिए और मैं बताए दे रहा हूँ वैसे इसका आंसर। तो अकॉर्डिंग टू मी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इट डज इट्स शेयर of work intelligently and bravely and never fights with others member of the group. It is the smallest and wisest insect. Throughout the year, it spends her time to collect food, but especially in the month of winter and rainy, because it knows very well that when the weather will not be favorable in these months, so at that time it will consume it. ये इसका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, द आंट टेल द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई? सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी निश्चित हाँ बिल्कुल सही है ये कि उसने जो उसको बोला था डांस द विंटर अवे, तो इसका आंसर हम नोट करेंगे। यस, द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर बिकॉज in the entire year the silly cricket didn't do anything. He was very lazy and sang all day. So the aunt tells the cricket to dance the winter away. Okay, student? Completed. Next, number 4 question. Which line in the poem expresses the poet's comment? Read them aloud. आपको बताना है कि विच लाइन्स इन दिस पोएम एक्सप्रेस द पोएट कमेंट, पोएट के कमेंट को कौन सी लाइन एक्सप्रेस कर रही है। सो इसका आंसर है, देखो बच्चों, इसका लास्ट में आपने देखा होगा आई विल वारंट, ये लिखा हुआ है। ओके, सो इसका आंसर भी यही है इस क्वेश्चन का। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर को नोट करेंगे। इन द लास्ट ऑफ द पोएम the poet comment, I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. Okay. The last question of this poem. Write the comment in your own words. Write the comment in your own words. इसको बच्चों आपको खुद से करना है। सो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको पूरी स्टोरी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई है कि स्टोरी में क्या हुआ है, कैसे क्या है, तो ये आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है, इसलिए आप इसको खुद से करेंगे। ओके स्टूडेंट। हाँ, सम फैक्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आंट्स के। आंट इज़ अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आपको पता है कि जो चींटियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। And second, among the various kind, the commonest ant is black and red. Among the various kind, the commonest ant is black and red. बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, पर चींटियों में मोस्टली जो हम देखते हैं वो लाल और काले रंग की देखते हैं। The home of ant is called the ant hills. जो चींटियों के घर हैं उनको हम ant hills कहते हैं। They use their antenna to talk to one another. जब वो एक दूसरे से बात करती हैं तो वो अपने एंटीनास का यूज़ करती हैं। एंटीनास मीन्स उनके जो सर के ऊपर जो जैसे बटरफ्लाई के सर के ऊपर दो एंटीना टाइप के नहीं होते हैं, उसी तरह के चींटी में भी होते हैं। सो दे यूज़ देयर एंटीना टू टॉक वन अनदर। दे ऑलवेज लिव इन वेल डिसिप्लिन
बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियाँ होती हैं जो बहुत डिसिप्लिन में रहती हैं एंड नेवर फाइट टू ईच अदर, और वो कभी भी एक दूसरे से लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है। आंट डिवाइडेड देयर कम्युनिटी, आंट जो आंट होती है ना वो अपनी कम्युनिटी को अलग अलग तरह से डिवाइड किए होती हैं। तो इनमें एक क्वीन आंट होती है। क्या होती है? क्वीन आंट। जो क्वीन एंट होती है, इट ले एग्स एंड हैव विंग्स, इसके पास ये अंडे देती है और इनके पास अपने पंख होते हैं। जी हाँ। ग्रप्स, यंग वन ऑफ द आंट, ये ग्रप्स जो होते हैं यंग वन ऑफ द आंट, जो आंट के बच्चे होते हैं। वर्कर्स क्या होते हैं? इनमें एक वर्कर होते हैं। सो वर्कर्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू सर्चिंग फूड, इनका काम होता है बच्चों खाना इकट्ठा करना, भोजन इकट्ठा करना, कलेक्टिंग द फूड, ये अपने लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। सोल्जर्स, यस, आंट अपनी कम्युनिटी में सोल्जर्स भी रखते हैं। दे हैव सेपरेटेड बैरक्स एंड दे नेवर गो फॉर सर्चिंग फूड, ये केवल बैरक्स में रहते हैं और इनके अलग अलग बैरक्स होते हैं, ठीक है ना। और ये कभी भी भोजन को खोजने के लिए नहीं जाते हैं, ये केवल सोल्जर्स की तरह रहते हैं। सो आंट डिवाइडेड देयर कम्युनिटी इन फोर। Number one, queen ant. Second, grubs. Third one, workers and soldiers. Okay, student. So some facts हैं ant के बारे में. So you can write this for your extra question. And मैंने एसोप्स के बारे में भी फर्स्ट वीडियो बताया है कि जो ग्रीक फैबुलिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं, इन्होंने बहुत सारी फेबल्स लिखी हुई हैं और उनको उन्हीं की फेबल्स में से ही अडॉप्ट की गई है द आंट एंड द क्रिकेट। और मैंने बताया है कि इनकी कुछ और भी क्रिएशंस हैं, जो द आंट एंड द क्रिकेट है, ग्रास हॉपर एंड द आंट्स है, द टॉर्टॉइज एंड द हेयर है, द सन एंड द विन है, द कैट दैट चेंज इनटू द विमन एंड द बग्स लाइफ एट्सेट्रा। ये इनकी कुछ अलग से इनकी क्रिएशंस हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कंप्लीट करना है, नोट करना है। व्हेन वी विल मीट, और तो आप लोगों की नोटबुक चेक की जाएंगी, इसको लर्न भी करना है। हाँ, फर्स्ट जो चैप्टर था आपका, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके थे, और जो सेकंड क्वेश्चन आपका बुक एक्सरसाइज में दिए गए थे वर्किंग विद लेसन के साथ, तो वो क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ करने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसको सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का आंसर श्योर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर।